welcome to Success Station. So in today's class we are going to study about the irrationality of numbers. Okay, so चलिए start करते हैं आज की क्लास. So first of all हमें ये जानना होगा that irrational numbers क्या होते हैं. Okay, so you all know what are irrational numbers, but let me just give you the definition. That the numbers that cannot be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Okay, so this was a basic definition of an irrational number. Now what about the decimal expansion of an irrational number? The decimal expansion of an irrational number is always of the form non-terminating and non-repeating. Okay, so these were some basic points about the irrational numbers. चलिए, so आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं with the irrationality of numbers. Irrationality of numbers. Okay, now in this, before starting this topic also, इसमें भी कुछ points हमें discuss करने हैं. Okay, so first let x be a rational number. एक रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर को हम लोगों ने x कंसिडर किया है, एंड लेट y बी एन irrational number. Okay, let x be a rational number and let y be an irrational number. Then x plus y का जो रिजल्ट होगा ना, दैट विल बी एन इर्रेशनल नंबर. नाउ ऐसा क्यों होता है? बिकॉज याद होगा, अगर आप लोगों को क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड अ इर्रेशनल नंबर ऑलवेज गिव्स एन इर्रेशनल नंबर. सो यहां पे देखिए x दैट इज अ रैशनल नंबर मैंने यहां कंसिडर किया है, एंड y दैट इज एन इर्रेशनल नंबर. सो x प्लस y means what? The sum of a rational and a irrational number will always give an irrational number. Okay, so it means x plus y will be an irrational number. Okay, understood? Now इसमें आप x plus y बोलो या y plus x बोलो, दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है. Clear? Now the difference of a rational number and a irrational number again gives an irrational number. तो यहां पे देखिए डिफरेंस का बात हो रहा है. इट मींस रैशनल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर, ऑल्सो इर्रेशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर. ये x माइनस वाई क्या है? रैशनल माइनस इर्रेशनल, और ये y माइनस x क्या है? इर्रेशनल माइनस रैशनल. ओके, सो x माइनस वाई इट विल अगेन बी एन irrational number. Okay, clear? It will be again an irrational number. Now next point, x into y, that is the product of a rational and a irrational number, it will again give an irrational number. So x into y will be an irrational number. तो इसमें आप x into y बोलो या y into x बोलो, दोनों का रिजल्ट तो सेम ही होता है. क्लियर? नाउ डिविजन, इट मींस यहां पे हम देखिए x by y करेंगे, मतलब रैशनल नंबर by divided by irrational number, it will again give an irrational number. Also y by x मतलब irrational divided by rational, it will again give an irrational number. Clear? Will be an irrational number. Also y by x, it will again be an irrational number. Okay, understood? So these were some basic points that you need to remember. Okay, ये आपको
पता होने चाहिए। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज इररेशनलिटी ऑफ नंबर। सो ये जो टॉपिक है ना इररेशनलिटी ऑफ नंबर, इसमें हम लोगों को करना क्या होगा, कुछ नंबर्स गिवन होंगे और हमें ये प्रूव करना होगा दैट द गिवन नंबर्स आर इररेशनल नंबर्स। ओके, सो एक छोटा सा थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। नाउ ये जो थ्योरम मैं भी डिस्कस करने वाला हूं, इसका जो प्रूफ है ना दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो स्टेटमेंट या थ्योरम मैं जो अभी लिखूंगा, इसका स्टेटमेंट बस आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है। ओके, बिकॉज इस थ्योरम का यूज होने वाला है while proving the given numbers as irrational. Okay, so देखिए थ्योरम क्या बोलता है। Theorem says that if P is a prime number, okay, if P is a prime number and if P divides and if P divides a square, okay, हमारे पास एक नंबर है P दैट इज अ प्राइम नंबर और ये प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ओके, ये जो प्राइम नंबर P है ये अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, देन इट मीन्स दैट P will divide A. ओके, क्लियर। यहां पे सिर्फ इतना आपको समझना होगा दैट इफ P is a prime number and if P divides A square then it means that this P will divide A. और यहां पे A क्या है, this A is a positive integer. okay, this A is a positive integer. This A is a positive integer. चलिए एक एग्जांपल के हेल्प से हम समझते हैं इसे। लाइक एक प्राइम नंबर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं दैट इज 3 इज अ प्राइम नंबर। नाउ गिवन क्या था, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो A स्क्वायर, चलिए A को पहले हम लोग कंसिडर कर, A हम लोग 9 कंसिडर करते हैं। सो इट मीन्स A स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 9 स्क्वायर। इट मीन्स 9 इंटू 9 इट मीन्स 81। ओके, यहाँ पे देखिए A स्क्वायर का वैल्यू आ गया 81 और यहाँ P का वैल्यू है 3। सो 81 डिवाइड बाई 3, देखिए 81 आपका A स्क्वायर है और ये 3 आपका P है। सो ऑब्वियसली दिस 3 डिवाइड्स 81। बहुत ही सिंपल है, चेक कर लीजिए, 8 प्लस 1 दैट इज 9, सम ऑफ द डिजिट्स कितना है 81 का 9, सो इट मीन्स 81 इज डिविजिबल बाई 3। इट मीन्स दैट 3 डिवाइड्स 81 मीन्स P डिवाइड्स A स्क्वायर। देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, this 3 will divide A. okay, this 3 will divide A. यहां पे देखिए, तो यहां जो 81 है, 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 3। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम P will divide A। तो यहां पे देखिए P क्या है, P आपका 3 है और A क्या है, यहां पे A आपका 9 है। ओके, A आपका 9 है बिकॉज 81 आपका A स्क्वायर का वैल्यू है। तो अगर हम 81 को ब्रेक करके लिखना चाहें देन उसे हम 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो आप देखो यहां पे 9 डिवाइड बाई 3 परफॉर्म करने पे अगेन दिस 3 कैन इजिली डिवाइड 9 बिकॉज 3 के टेबल में 9 तो आता है। ओके, इस थ्योरम में बस इतना ही बोला गया है, अंडरस्टूड। सो वी विल यूज दिस थ्योरम टू प्रूव द गिवन नंबर्स एज इररेशनल नंबर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, विद द क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 63? प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। हमें प्रूव क्या करना है, दैट √2 एक इररेशनल नंबर है। Now, अगर आप लोगों को याद होगा क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इररेशनल नंबर। सो √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना दैट इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये तो हमें पता है दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर, बट ये चीज हमें प्रूव करके दिखाना है। ओके, ये चीज हमें प्रूव करके दिखाना है दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। तो √2 को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करने वाले हैं। ना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है ना, अभी ये देखिए जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये आपका रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं, रैशनल एंड इररेशनल। तो अगर कोई नंबर रैशनल नहीं होगा देन डेफिनेटली वो नंबर आपका इररेशनल ही होना चाहिए। क्लियर? तो बस इसी पॉइंट को यूज करते हुए हम लोग ना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करने वाले हैं। तो देखिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में करेंगे हम लोग क्या,
हम लोग पहले ये कंसिडर कर लेंगे दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। ओके, पहले हम लोग ये कंसिडर कर लेंगे दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। देन उसके बाद हम लोग ये प्रूव कर देंगे दैट √2 एक रैशनल नंबर नहीं है। ओके, √2 एक रैशनल नंबर नहीं है। सो ऑब्वियसली अगर वो रैशनल नहीं है देन डेफिनेटली वी कैन से दैट √2 विल बी एन इरैशनल नंबर। क्लियर? ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट विल राइट दैट लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। सो अगर √2 एक रैशनल नंबर है इट मींस √2 को हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो यहां पे p/q के अलावा हम लोग a/b कंसिडर कर लेते हैं। ओके, अंडरस्टूड? आप a/b ले लो, p/q लो, c/d लो, कोई भी वेरिएबल आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ एक पॉइंट और यहां आपको मेंशन करना होगा दैट a, b मस्ट बी को प्राइम। A, B must be co-prime, that is HCF is equal to 1। तो यहां पे देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है, यहां जो A और ये जो B है ये दोनों को प्राइम होने चाहिए ना। को प्राइम का मतलब क्या होता है, मतलब A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ओके, 1 के अलावा A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप यहां पे आप देखिए मेंशन्ड है इन दोनों नंबर्स का दैट इज A, B का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज द HCF, उसका वैल्यू 1 है। या सिंपल से आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो a/b है ना ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे होने का मतलब क्या हुआ, दैट इसे हम फर्दर कैंसल नहीं कर सकते हैं। ओके, तो नाउ अभी देखिए जो पॉइंट हमने लिखा है ना a एंड b मस्ट बी को प्राइम, यहां पे हमने इसे कंसिडर किया बिकॉज यहां पे सबसे पहले हमने माना दैट √2 एक रैशनल नंबर है, देन इट मींस √2 को हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं और A और B दोनों को प्राइम है, मतलब A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ओके, तो नाउ देखिए ये जो पॉइंट है ना इसी पॉइंट को यूज करते हुए हम लोग प्रूफ कर देंगे दैट ये जो √2 है ना ये रैशनल नंबर नहीं है। नाउ ये प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे A और B का एक कॉमन फैक्टर हम लोग ढूंढ लेंगे 1 के अलावा। ओके, A और B का एक कॉमन फैक्टर हम लोग ढूंढ लेंगे 1 के अलावा। तो अगर हम लोगों ने ढूंढ लिया एक कॉमन फैक्टर 1 के अलावा इट मींस A और B आपका को प्राइम तो हुआ ही नहीं। इट मींस ये जो हमने कंसिडर किया था ये गलत है। सो इट मींस यहां पे जो हम लोगों ने कंसिडर किया था √2 एक रैशनल नंबर है, ये भी गलत है। ओके, तो अगर √2 एक रैशनल नंबर नहीं होगा देन डेफिनेटली √2 एक इरैशनल नंबर ही होगा। ओके, क्लियर? चलिए, तो अभी एक कॉमन फैक्टर ढूंढने के लिए देखिए हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ओके, तो हमें क्या याद रखना है, यहां पे हम एक कॉमन फैक्टर ढूंढने वाले हैं A और B का 1 के अलावा, बिकॉज 1 तो ऑब्वियसली कॉमन फैक्टर होता ही है। क्लियर? चलिए, तो कुछ स्टेप्स यहां पे हम लोग करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप है देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग करते हैं। सो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का स्क्वायर। क्लियर? देन यहां पे देखिए √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू √2। सो √2 इंटू √2 का वैल्यू 2 होता है। क्लियर? सो 2 इज इक्वल टू a²/b²। क्लियर? नाउ यहां पे अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो यहां पे देखिए 2 का डिनोमिनेटर है 1, सो 1 इंटू a² आपका a² हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू b², 2 इंटू b²। नाउ यहां पे आप ध्यान से देखो a² का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू b², मतलब a² हैज बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहला नंबर आपका 2 है और दूसरा नंबर आपका b² है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ दैट दिस 2 इज अ फैक्टर ऑफ a² एंड दिस b² is also a factor of a²। देन फैक्टर होने का मतलब क्या हुआ दैट a² डिवाइड बाई 2 आप जब परफॉर्म करोगे देन ये जो 2 है ना ये a² को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। क्लियर? देन यहां पे हम क्या लिखेंगे, सो दैट 2 विल डिवाइड a²। ये हम लिख सकते हैं बिकॉज 2 जो है a² का एक फैक्टर है।
क्लियर। नाउ ये 2a² का फैक्टर क्यों है? बिकॉज यहां पे a² को हम लोगों ने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में। ओके जैसे आप 6 को 2 into 3 लिखते हो। सो ये जो 2 है ना ये 6 का फैक्टर हुआ और ये 3 है ये भी आपका 6 का फैक्टर हुआ। बस सिमिलरली इसी तरीके से हम लोगों ने बोला दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ a²। क्लियर। सो इफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ a² इट मींस 2 विल डिवाइड a²। नाउ अभी देखिए इस थ्योरम का यहां पे यूज होगा। यहां पे क्या बोला गया था? लाइक इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स a²। तो यहां पे देखिए ये जो 2 है दिस 2 इज अ प्राइम नंबर एंड दिस 2 इज डिवाइडिंग a²। then according to this theorem what we can say that p will divide a। मतलब यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे that 2 will divide a। clear। 2 will divide a, so this implies we will say that 2 will divide a। 2 will divide a। यहां पे देखिए स्टेटमेंट हमें मिल गया है। इट मींस हमें एक ऐसा नंबर मिला है जो a को डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ये प्रूव कर दे दैट ये जो 2 है ये b को भी डिवाइड करता है। खुद ही आप सोचिए यहां पे हमें ये तो मिल गया दैट 2 इज डिवाइडिंग a। तो अगर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये फाइंड आउट कर लें दैट 2 इज डिवाइडिंग b, सो इफ 2 इज डिवाइडिंग a एंड b बोथ इट मींस 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। सो यहां पे हमें एक कॉमन फैक्टर अगर मिल जाएगा देन ये चीज जो हम लोगों ने लिखा है a एंड b मस्ट बी कोप्राइम, ये तो गलत हो जाएगा। सो इट मींस √2 एक रैशनल नंबर जो हम लोगों ने कंसिडर किया था ये भी गलत हो जाएगा। सो अगर ये √2 एक रैशनल नंबर नहीं होगा देन डेफिनेटली √2 विल बी एन इरैशनल नंबर। क्लियर। चलिए तो इसके लिए अगेन देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आपको फिर से सोचना होगा। यहां पे ये जो 2 विल डिवाइड a हमें मिला कैसे? जब हमें a² का जो वैल्यू है उससे हमने 2 into b² के फॉर्म में लिखा नहीं, ये तो हमें मिला है एक्चुअली। तो बस हमें यही सोचना है नेक्स्ट स्टेप में दैट b² को भी हमें इसी फॉर्म में लिखना होगा दैट b² इज इक्वल टू 2 into समथिंग। मतलब यहां पे b वेरिएबल था वहां पे कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। तो हमें यही फॉर्म में लाना होगा तभी हमें क्या मिलेगा 2 विल डिवाइड b। क्लियर। चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो अभी देखिए हम लोग को यहां पे कुछ कंसिडर करना होगा। ओके तो कंसिडर करते हैं लेट a इज इक्वल टू, ओके यहां पे जो a है ना इसे हम लोग कंसिडर करेंगे 2 into c। ओके ये सिर्फ एक वेरिएबल है c। ओके यहां पे आप कोई और वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके लिए। चलिए तो लेट a इज इक्वल टू 2c। सो यहां पे पुट करते हैं a का वैल्यू 2c। सो 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into b का स्क्वायर। क्लियर। सो 2 into c का स्क्वायर इट मींस 4c स्क्वायर। सो 2 into b का स्क्वायर। क्लियर। ये जो 2 है b² के साथ मल्टीप्लाइड है तो इस 2 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। तो ये 4 डिवाइड बाई 2 c² इज इक्वल टू b²। कैंसिल करते हैं तो ये आपका क्या होगा 2 into c² इज इक्वल टू b²। तो देखिए यहां पे हमें जो फॉर्म मिला था वही सेम टू सेम फॉर्म हमें यहां पे मिला है कि नहीं? a² इज इक्वल टू 2 into b²। यहां पे मिला था मतलब 2 into, यहां पे इस b को आप सिर्फ एक वेरिएबल समझिए। ठीक है मतलब a² का फॉर्म कौन सा मिला था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में। तो यहां पे भी तो वही मिला है हमें b² हैज बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज 2 into c²। क्लियर। समझ में आया? So it means that 2 is a factor of b². Clear. So if 2 is a factor of b², so this 2 will divide b². So we can say that so 2 will divide b². Okay. Now again यहाँ पे थ्योरम का हम लोग यूज करने वाले हैं। ये 2 एक प्राइम नंबर है। So if 2 is dividing b², so this implies this 2 will divide b। this 2 will divide b। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट आ गया। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट को देखिए। ये जो 2 है ये a को भी डिवाइड कर रहा है और ये जो 2 है ये b को भी डिवाइड कर रहा है। इट मींस ये जो 2 है a और b का कॉमन फैक्टर है। तो यहां पे हमें 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर मिल गया ना 1। देखिए 2 इज डिवाइडिंग a एंड 2 इज डिवाइडिंग b, मतलब a और b का हमें कॉमन फैक्टर मिल गया है दैट इज 2। ओके क्लियर।
तो इसका मतलब ये हुआ दैट ए और बी ये दोनों को प्राइम तो नहीं है। सो यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया था ये बिल्कुल गलत है। सो इट मीन्स यहाँ जो ये भी हम लोगों ने कंसिडर किया था √2 एक रैशनल नंबर है, ये भी गलत है। ओके, तो ये अभी हमें लिखना होगा। सो फ्रॉम 1 and 2, so from 1 and 2 we can say that, okay, so from 1 and 2 we can say that A and B are having a common factor 2. A and B are having a common factor 2 other than 1, मतलब 1 के अलावा, बिकॉज 1 तो ऑलवेज कॉमन फैक्टर होता ही है। सो यहां पे 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर हमें मिला। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट A and B आर हैविंग अ कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1। सो इट मीन्स आवर कंसिडरेशन दैट, मतलब हम लोगों ने जो कंसिडर किया था, सो आवर कंसिडरेशन दैट √2 is a rational number, √2 is a rational number, √2 is a rational number is wrong. So our consideration that √2 is a rational number is wrong. So what we will write? So last में यहाँ पे लिख देना, so it means √2 is an irrational number. So it means √2 is an irrational number. ओके, क्लियर हुआ आपको? ये है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यहाँ पे आप एक चीज समझिए, यहाँ जो मैंने कंसिडर किया a इज इक्वल टू 2c, ये जो 2c मैंने कंसिडर किया, यहाँ पे पहले आप c के लिए कोई भी टेंशन मत लो, यहाँ पे आप c के अलावा कोई भी वेरिएबल कंसिडर कर सकते हो। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है 2, देखिए यहाँ पे 2 लेने से हुआ क्या, यहाँ पे a के जगह अगर मैंने 2 इंटू सी कंसिडर किया, देन 2 इंटू सी का यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर हुआ, तो 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4, और अगर ये 4 हुआ है तभी ये जो 2 ना b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड था, इस 2 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आए, तभी 4 डिवाइड बाय 2 परफॉर्म करने पे यहाँ पे हमारे पास 2 बचा। तो आप सोचिए एक एक स्टेप कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमने 2 कंसिडर किया, इसके पीछे कितना इंपॉर्टेंस है ये वाला चीज, कि अगर इसे हम 2 कंसिडर करेंगे तभी यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और तभी ये 2 को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो 4 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 आपको मिलना ही चाहिए। यहाँ पे आपको 2 मिला, तभी आपने बोला दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, मतलब 2 इज डिवाइडिंग b स्क्वायर, देन वी विल से दैट 2 विल डिवाइड b। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक एक स्टेप है ना, कितना इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया, ये हमने 2 ही क्यों कंसिडर किया, इसके पीछे का कारण आपको पता चला। ओके, अंडरस्टूड। तो ये आपका सॉल्यूशन था ऑफ क्वेश्चन नंबर 63। टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। देन अगेन लास्ट क्लास में जो मेथड हम लोगों ने यूज किया था √2 को प्रूव करने में, ओके, वी विल अगेन यूज द सेम मेथड टू प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। मतलब हम लोग फिर से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को ही यूज करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट विल राइट दैट लेट √3 be a rational number. Let √3 be a rational number. So it means that √3 can be written in the form of a by b or p by q or c by d। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए, और यहाँ पे ये पॉइंट हम लोगों को लिखना होगा दैट a, b are co-prime। a, b are co-prime, that is highest common factor is equal to 1। ओके, a, b are co-prime बोलने का मतलब क्या हुआ, दैट a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ओके, बिकॉज 1 तो ऑलवेज एक कॉमन फैक्टर रहता ही है, तो 1 के अलावा a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। या सिंपल आप क्या बोल सकते हो, दैट ये जो a by b मैंने लिखा है, दिस इज एक्चुअली इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट स्टेप क्या था, याद होगा आप लोगों को, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सो यहां पे देखिए हम लोग स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था दैट हमें कुछ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने होंगे। नाउ ये सारे स्टेप्स हम लोग फॉलो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये जो पॉइंट है ना
ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो हम लोग यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर ढूंढने वाले हैं ए और बी का 1 के अलावा। ओके, दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग सम स्टेप्स। ओके, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सो स्क्वायरिंग करते हैं, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी का स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इंप्लाइज √3 का स्क्वायर इज व्हाट? √3 into √3 and √3 into √3 is obviously 3. क्लियर? सो ये होगा आपका a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 का डिनोमिनेटर है आपका 1, सो 1 into a स्क्वायर आपका a स्क्वायर हो गया। क्लियर? 3 into b स्क्वायर। Understood? 3 into b square. Now, as you can see, a square has been written in the form of product of two numbers. पहला नंबर आपका 3 और दूसरा नंबर आपका b square. Clear? So it means, so this 3, ये जो 3 है a square का फैक्टर है, it means that 3 will divide a square completely. Okay? So 3 will divide a square. 3 will divide a square. Clear? So it means that 3 will divide a. Clear? यहां पे हम लोगों ने उसी थ्योरम का यूज किया था, that if p is a prime number and if p divides a square, it means that p will divide a. तो यहां पे ये p क्या है? p एक प्राइम नंबर है और यहां p का वैल्यू आपका 3 है, so this 3 will divide a. इसे मैं फर्स्ट स्टेटमेंट कंसिडर कर ले रहा हूं। ओके, तो यहां पे देखिए a का हमें एक कॉमन a का एक फैक्टर मिला है हमें, दैट इज 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये प्रूव कर देंगे ये जो 3 है ये b का भी फैक्टर है। इट मींस दैट 3 इज डिवाइडिंग b आल्सो, देन a और b का एक कॉमन फैक्टर हमें मिल जाएगा अदर देन 1, दैट इज 3। सो अगर हमें a और b का एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, देन यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया है a, b आर को प्राइम, ये तो बिल्कुल गलत है। ओके, तो अगर ये बिल्कुल गलत है तो यहां जो हम लोगों ने प्रूव कंसिडर किया है लेट √3 बी अ रैशनल नंबर, ये भी गलत है। ओके, सो अगर मेरे पास एक नंबर है वो अगर रैशनल नहीं होगा, देन डेफिनेटली दैट नंबर विल बी एन इरैशनल नंबर। क्लियर? चलिए, सो अगेन आपको याद होगा कुछ पॉइंट्स, यहां पे हमें फिर से a को कंसिडर करना होगा, a को हमें कुछ कंसिडर करना होगा। अगेन लेट a इज इक्वल टू 3c, लेट a इज इक्वल टू 3c। क्लियर? चलिए अभी यहां पे हम पुट करते हैं a इज इक्वल टू 3c, a की जगह वैल्यू इसका दैट इज 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू b का स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर होगा आपका 9c स्क्वायर, ये आपका 3 इंटू b का स्क्वायर। सो ये होगा आपका 9, ये 3 को हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, 9/3c स्क्वायर is equal to b square, so ये कैंसिल होगा, 3 3s are 9, so this implies 3 into c square is equal to b square. Clear? तो यहाँ पे देखिए b square has been written in the form of product of two numbers, that is 3 into c square. So it means ये जो 3 है ये आपका b square का फैक्टर है। Okay, so this 3 will divide b square. Clear? So this 3 will divide b square. Now we will use the theorem that if p is a prime number and if it is dividing b square or a square, okay, then it means that 3 will divide b. So this implies, yeah, so रब कर दीजिए इसे, this implies 3 will divide b. ओके, ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट। क्लियर? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन सी दैट a और b का एक कॉमन फैक्टर हमें मिला है और वो कॉमन फैक्टर क्या है? 3, बिकॉज दिस 3 इज डिवाइडिंग a and this 3 is dividing b. It means this 3 is dividing a and b both. मतलब ये 3 क्या हुआ? a और b का कॉमन फैक्टर हुआ। सो अगर ये 3 a और b का एक कॉमन फैक्टर है, इट मींस a एंड b आर नॉट को प्राइम। सो अगर a और b दे आर नॉट को प्राइम, मतलब यहां पे जो हमने कंसिडर किया था ये गलत है, सो ये भी गलत हो गया। क्लियर? चलिए, सो वी विल राइट दैट फ्रॉम 1 and 2
from 1 and 2 we can say that from 1 and 2 we can say that a comma b are having a comma b are having a common factor. A comma b are having a common factor 3 other than 1. मतलब ये लिखना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. अदर देन मतलब 1 तो ऑलवेज कॉमन फैक्टर होता ही है, बट हमें 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर ढूंढना था. ओके, वी कैन से दैट a and b आर हैविंग अ कॉमन फैक्टर 3 अदर देन 1. सो आवर कंसिडरेशन मतलब हम लोगों ने जो कंसिडर किया था ना दैट √3 इज अ रैशनल नंबर, ये तो गलत हो गया. ओके, सो आवर कंसिडरेशन दैट √3 इज अ rational number is wrong. Okay, √3 is a rational number is wrong. So we will say so √3 is an irrational number. √3 is an irrational number. Okay, clear? तो यहां पे हम लोगों ने प्रूव कर दिया that √3 is an irrational number. Now again ये वाला पॉइंट समझिए that यहां पे हम लोगों ने a इक्वल टू 3 इंटू सी क्यों कंसिडर किया. तो c तो सिर्फ एक वेरिएबल था, यहाँ पे आप c के अलावा कोई और वेरिएबल भी सेलेक्ट कर सकते थे. बट यहाँ पे देखिए 3 को सेलेक्ट करने से क्या हुआ, देखिए इस स्टेप में क्या हुआ, 3c का स्क्वायर हुआ. ओके, तो यहाँ पे 3 इंटू बी स्क्वायर, ये तो सिंपली ये वाला हम लोगों ने पुट किया है ना. ओके, a के जगह हम लोगों ने 3 इंटू सी पुट किया. ओके, चलिए, सो 3 इंटू सी, सो 3 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे 9 आया. सो ये जो 3 था बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में, इसे हम लेफ्ट में लेके आए तो ये 9 डिवाइड बाई 3 हुआ और यहाँ पे 3 बचा. सो ये फॉर्म हमें चाहिए ही था, बी स्क्वायर इजकल टू 3 इंटू सी स्क्वायर. अगर ये फॉर्म हमें नहीं मिलता देन ये हम लिख नहीं सकते थे दैट दिस 3 विल डिवाइड बी स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट 3 विल डिवाइड बी. तो अगर हमें यहाँ 3 चाहिए था, ओके, देन यहाँ पे 3 कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज यहाँ 3 कंसिडर जब हम लोगों ने किया तो यहाँ 3 का स्क्वायर देखिए 9 आया, तो इस 3 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आए तो 9 डिवाइड बाई 3 यहाँ 3 बचा. सो अंडरस्टूड, क्लियर हुआ दैट वहां पे 3 कंसिडर करने का कितना इंपॉर्टेंस है. क्लियर? चलिए, दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 64. चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65. ओके, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 65? प्रूव दैट √5 is an irrational number. So again फिर से सेम मेथड, द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. पहले हम लोग ये कंसिडर कर लेंगे दैट √5 is a rational number. देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स में, कुछ आगे के स्टेप्स में हम लोग ये प्रूव कर देंगे, ओके, दैट √5 is not a rational number. So if √5 is not a rational number then definitely √5 will be an irrational number. ओके, बिकॉज रियल नंबर्स ऑब्वियसली दो टाइप्स के होते हैं, एक रैशनल और एक दूसरा इरैशनल. तो अगर एक नंबर रैशनल नहीं होगा देन डेफिनेटली वो गिवन नंबर इरैशनल ही होगा. क्लियर? चल, सो फर्स्ट स्टेप, लेट √5 be a rational number. Let √5 be a rational number. So this implies √5 will be written in the form of p by q or a by b. और यहां पे एक पॉइंट आपको और लिखना होगा that a, b are co-prime. That is HCF is equal to 1. Okay, ये पॉइंट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है आपको कि प्राइम का मतलब क्या हुआ, दैट ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा. या आप सिंपली बोलो, यहां जो a बाई बी का फॉर्म मैंने लिखा है ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप क्या हम लोग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. नाउ ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहां पे हम लोग एक कॉमन फैक्टर ढूंढने वाले हैं a और b का 1 के अलावा, मतलब 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर हम लोग ढूंढने वाले हैं a और b का. तो अगर वो कॉमन फैक्टर हमें मिल गया देन हम ये इजीली बोल देंगे दैट a और b जो हम लोगों ने यहाँ कंसिडर किया है ये दोनों को प्राइम है, ये तो गलत है. सो इट मीन्स यहां जो हम लोगों ने कंसिडर किया है दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, ये भी गलत है. क्लियर? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो √5
का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी का होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ रूट 5 का स्क्वायर इज रूट 5 इंटू रूट 5, दैट इज 5, बिकॉज रूट 5 इंटू रूट 5 का वैल्यू 5 होता है। ये आपका a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 इंटू ए स्क्वायर आपका क्या हो गया a स्क्वायर, और यहाँ पे 5 इंटू बी स्क्वायर हो गया 5 इंटू बी स्क्वायर। क्लियर? नाउ a स्क्वायर हैज बिन रिटन in the form of product of two numbers, that is 5 into b square. It means this 5 is a factor of a square and this b square is also a factor of a square. So as 5 is a factor of a square, it means this 5 will divide a square completely, मतलब a square divide by 5 perform करने पे remainder 0 आना चाहिए। Clear? So we will write that 5 will divide a square. So this implies what we can say. Now अभी हम उस थ्योरम का यूज करने वाले हैं, that if p is a prime number and if it divides a square, then it means that p will divide a. तो यहाँ पे p देखिए प्राइम नंबर कौन सा है, that is 5. So if 5 is dividing a square, then it means this 5 will divide a. Okay, this 5 will divide a. This 5 will divide a. इसे हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट कंसिडर कर लेते हैं। ओके, नाउ अभी आप सोचिए नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे। ये जो 5 है ना, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे ये प्रूव कर देंगे दैट दिस 5 विल डिवाइड b। ओके, उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर का फॉर्म मिला, तो वहां पे भी हम सेम टू सेम फॉर्म चाहिए। जैसे b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू कोई एक वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, जैसे अगर हम लोग c सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे हमें क्या फॉर्म चाहिए होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर। अगर वो फॉर्म हमें मिल गया, देन उसके बाद हम लोग लिख देंगे दैट 5 विल डिवाइड b स्क्वायर, देन वी कैन राइट दैट 5 विल डिवाइड b। ओके, अंडरस्टूड? तो इसीलिए यहां पे हम लोग को a को कुछ कंसिडर करना होगा। लेट a इज इक्वल टू 5c, लेट a इज इक्वल टू 5c। क्लियर? चलिए यहां पे पुट करते हैं a के जगह पे, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे क्या है, 5 इंटू बी स्क्वायर, 5 इंटू बी स्क्वायर। सो 5c स्क्वायर मीन्स 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर। सो 25 डिवाइड बाई 5, ये जो 5 है बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड था, इसे हम लेफ्ट साइड में लेके आ गए। सो c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, कैंसल होगा ये, तो यहां पे आपका क्या बचेगा, 5c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहां पे देखिए यही फॉर्म हमें मिला ना, बी स्क्वायर हैज बिन रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट इज 5 इंटू सी स्क्वायर। सो ये जो 5 है ये बी स्क्वायर का फैक्टर हो गया। सो व्हाट वी विल राइट, दैट दिस 5 विल डिवाइड बी, दिस 5 विल डिवाइड बी। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, दिस 5 will divide b square था ना ये। so according to this theorem what we will write, that 5 will divide b। क्लियर? ये हम लोगों ने थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा। क्लियर? इसे हम दूसरा स्टेटमेंट कंसिडर कर लेते हैं। ओके, नाउ अगेन फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड फ्रॉम स्टेटमेंट 2 व्हाट वी कैन से दैट a and b are having a common factor 5 other than 1, बिकॉज ये जो 5 है a को भी डिवाइड कर रहा है और ये जो 5 है b को भी डिवाइड कर रहा है। इट मींस ये जो 5 a और b दोनों का फैक्टर हुआ। ओके, सो a एंड b आर हैविंग अ कॉमन फैक्टर 5 अदर देन 1। ओके, सो यहां जो हम लोगों ने कंसिडर किया था a एंड b आर को प्राइम, ये टोटली गलत हो गया। सो यहां पे जो हम लोगों ने कंसिडर किया था रूट 5 एक रैशनल नंबर, ये भी टोटली गलत। तो अगर ये टोटली गलत हो गया, सो इट मींस रूट 5 जो है वो डेफिनेटली एक इरैशनल नंबर होगा। सो स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, सो फ्रॉम 1 and 2, so from 1 and 2 we can say that, so from 1 and 2 we can say that a comma b are having a common factor, a comma b are having a common factor 5 other than 1, so our consideration that root 5
is a rational number. So our consideration that root 5 is a rational number is wrong. So root 5 is an irrational number. So root 5 is an irrational number. Clear? अगेन इस पॉइंट को समझिए दैट यहां पे हम लोगों ने a इज इक्वल टू 5c क्यों कंसिडर किया. अगेन मैं फिर से वही चीज बोल लूंगा, c इज जस्ट अ वेरिएबल. सो यहां देखिए 5 इंटू सी कंसिडर करने से क्या हुआ, यहां पे जब हम लोगों ने पुट किया 5 इंटू सी तो 5 का स्क्वायर देखिए 25 हुआ. ओके, सो ये जो 5 आपका b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड था, इस 5 को मैं लेफ्ट में लेके आए तो 25 डिवाइड बाई 5 हुआ, तो यहाँ पे आपका 5 बचा. सो ये फॉर्म हमें बहुत इंपॉर्टेंट था इस फॉर्म में लाना, बिकॉज इस फॉर्म में अगर हम लोग लाए हैं देन ओनली वी विल से दैट दिस 5 विल डिवाइड b स्क्वायर, दिस 5 विल डिवाइड b स्क्वायर एंड देन वी विल से दैट दिस 5 विल डिवाइड b. ओके, क्लियर? तो अगर हम लोग यहाँ 5 लेते हैं तो देखिए 5 का स्क्वायर है 25 होगा, देन ओनली ये 5 जो है 25 को डिवाइड करेगा तभी यहाँ 5 बचेगा. ओके, तो जब यहाँ पे 5 बचेगा तभी हम बोल सकते हैं दैट दिस 5 इज डिवाइडिंग b स्क्वायर. ओके, यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है एंड देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम वी विल से दैट 5 विल डिवाइड b. क्लियर? अंडरस्टूड? सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 65. जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन ऑल दीज क्वेश्चंस वी हैव सेलेक्टेड द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर एंड अ इरैशनल नंबर. ओके, अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 65. एंड क्वेश्चन नंबर 65 क्या है आपका? प्रूव दैट लेट मी सी द क्वेश्चन वंस. प्रूव दैट 7 plus 3 root 5 is an irrational number. Prove that 7 plus 3 root 5 is an irrational number. Okay? So यहां पे देखिए मैंने क्या बोला, हम लोगों ने सेलेक्ट किया है कॉम्बिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर एंड अ इरैशनल नंबर. यहां पे देखिए 7 is a rational number, 3 is again a rational number and this root 5 is an irrational number because ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है. ओके, दैट दिस root 5 is an irrational number. तो अभी देखिए इसे हम लोग प्रूव कैसे करेंगे दैट दिस गिवन नंबर इज एन irrational number. तो अभी तक हम लोगों ने रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 को प्रूव किया था दैट दे आर इरैशनल नंबर्स. तो वहां पे हम लोगों ने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज किया था. ओके, देन अगेन इन दिस क्वेश्चन आल्सो वी विल यूज द सेम मेथड, दैट इज द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. देखिए, सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा दैट लेट 7 plus 3 root 5 is a let 7 plus 3 root 5 is a rational number. Okay, let 7 plus 3 root 5 is a rational number. So if 7 plus 3 root 5 is a rational number, so it means that 7 plus 3 root 5 can be written in the form of p by q or I can write it in the form of a by b. और यहां जो a by b मैंने लिखा है दिस इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, इट मींस यहां पे आपको ये पॉइंट लिख देना होगा दैट a कॉमा b आर को प्राइम. ओके, दैट इज HCF इज इक्वल टू 1. ओके, अंडरस्टूड? नाउ देखिए अभी क्या करते हैं हम लोग. यहां पे आप अगर देखोगे 7 plus 3 root 5 इज इक्वल टू a by b, देन यहां पे हम लोग ये तरीका यूज नहीं करेंगे जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में किया था. लाइक रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 में हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया था दैट दे आर हैविंग अ कॉमन फैक्टर, दैट इज a एंड b आर हैविंग अ कॉमन फैक्टर. ओके, अदर देन 1. ओके, अदर देन 1 का मतलब क्या हुआ दैट a और b का एक कॉमन फैक्टर हमें मिला 1 के अलावा. देन हमने ये बोला दैट a एंड b आर नॉट को प्राइम. ओके, को प्राइम का मतलब क्या होता है दैट दोनों का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, दैट इज 1. और अगर हमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर मिला देन ये जो हम लोगों ने यहां लिखा था दैट a, b आर को प्राइम, ये तो गलत हो गया.
सो ये जो हम लोगों ने कंसिडर किया था दैट इट इज अ रैशनल नंबर, ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सो यहाँ पे भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करेंगे, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। ओके, नाउ ये डिफरेंट वे क्या है, देखिए 7 + 3√5 = a by b है। देन यहाँ पे आपको टारगेट क्या रखना है, दैट इस √5 को आप किसी एक साइड में लेके जाओ। किसी एक साइड में लेके जाने का मतलब या तो उस √5 को आप लेफ्ट साइड में रखो या तो उस √5 को आप राइट साइड में रखो। ओके, ये टारगेट रखना है आप लोगों को। तो चलिए देखिए, तो अभी इससे √5 को हम लोग अलग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3√5 यहाँ पे मेंशन्ड है आपका, तो इस 7 को हम लोग राइट साइड में लेके चले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a by b - 7। ओके, नाउ यहाँ देखिए 3 जो है √5 के साथ मल्टीप्लाइड है। क्लियर, तो नाउ अब इस √5 को हम लोग इधर लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। तो ये 3 जो आपका मल्टीप्लाइड है ना √5 के साथ, इसे अगर हम लेफ्ट राइट साइड में लेके जाएं तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a by b - 7 डिवाइड बाई 3। ओके, अंडरस्टूड। इसे आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो। नाउ इसके आप राइट पोर्शन को देखिए, a by b क्या है, a by b इज अ रैशनल नंबर। यहां पे देखिए मैंने बोला भी है दैट 7 + 3√5 को हमने कंसिडर किया दैट इट इज अ रैशनल नंबर। सो इसका जो वैल्यू है दैट इज a by b, इट मींस ये जो a by b है दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर। सो a by b एक रैशनल नंबर होता है, 7 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर का रिजल्ट भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ओके, और इसके डिनोमिनेटर को देखो आप, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो न्यूमरेटर भी रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर भी रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर, इट विल अगेन गिव अ रैशनल नंबर। ओके, अंडरस्टूड। चलिए तो लिखते हैं दैट सिंस a by b is a rational number, since a by b is a rational number, so it means that a by b - 7 by 3 is also a rational number। अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ओके, so since a by b is a rational number, so it means that a by b - 7 by 3 is also a rational number, is also a rational number। but चलिए ये तो क्लियर हो गया, ये जो इक्वेशन का राइट साइड है ना, राइट साइड दैट इज a by b - 7 by 3, ये तो आपका एक रैशनल नंबर हो गया। बट इसके लेफ्ट साइड को देखिए, लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है, दैट इज √5 एंड √5 इज एन इरैशनल नंबर, और ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। ओके, बट √5 is an irrational number। तो यहां पे आप इक्वेशन 1 में ध्यान से देखो, इसका जो राइट वाला पार्ट है ये आपका रैशनल नंबर है, और इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये एक इरैशनल नंबर है। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है दैट इरैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल राइट, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 हम लोगों ने कंसिडर किया था, अभी हम यहां पुट कर देते हैं, ये आपका एक रैशनल नंबर और ये √5 आपका इरैशनल नंबर। सो फ्रॉम 1 irrational number is equal to rational number। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो जाएगा? ओके, सो फ्रॉम 1 irrational number is equal to rational number। सो यहां पे हम लोग लिख देते हैं which is not possible। सो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ऐसा आया क्यों पता है आपको? बिकॉज हमने यहां पे ये कंसिडर कर लिया था दैट 7 + 3 × √5 एक रैशनल नंबर है। मतलब यहां पे हम लोगों ने इसे अगर कंसिडर किया दैट इट इज अ रैशनल नंबर, देन हमें ये कंक्लूजन मिला दैट इरैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो ये पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता। इट मींस यहां पे जो भी हम लोगों ने कंसिडर किया था ये बिल्कुल गलत है, दिस इज टोटली रॉन्ग। ओके, सो नाउ आई विल राइट, सो our consideration that 7 + 3 √5, so our consideration that 7 + 3 √5 is a rational number,
So our consideration that 7 plus 3 root 5 is a rational number is wrong. Okay. So now, so 7 plus 3 root 5 is an irrational number. Okay. Now again the same thing. अगर मेरे पास एक नंबर है और वो नंबर अगर रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, देन डेफिनेटली दैट नंबर विल बी एन इरैशनल नंबर, बिकॉज रियल नंबर्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, रैशनल एंड दूसरा इरैशनल. तो अगर एक नंबर मेरे पास है तो वो रैशनल नहीं है, देन डेफिनेटली दैट नंबर इज एन इरैशनल नंबर. Okay, understood? So this was the solution of your question number 66. Okay, so let's solve our next question, that is question number 67. And what is question number 67? Prove that 5 minus 3 root 2 is an irrational number. So again we will use the contradiction method. So let's consider that let 5 minus 3 root 2 is a rational number. Okay, let 5 minus 3 root 2 is a rational number. So it means that 5 minus 3 root 2 can be written in the form of p by q, or you can say in the form of a by b. कोई भी वेरिएबल्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो. ओके, एंड ये जो a by b है आपका, दिस इज एक्चुअली इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं that a and b are co-prime, मतलब a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा. ओके, सो यहाँ हम लोग लिख देते हैं दैट मीन्स को-प्राइम का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स a और b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका 1 होना चाहिए. क्लियर? सो नाउ अभी आप क्या लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था, वहां पे रूट 5 मेंशन था. तो मैंने क्या बोला था आपको, दैट उस रूट 5 को आप या तो लेफ्ट साइड में रखो या तो उससे आप राइट साइड में रखो. यहाँ पे भी सेम अप्रोच हमें फॉलो करना है. यहाँ पे देखिए आप रूट 2 जो है ना, इस रूट 2 को या तो आप लेफ्ट में रखो या तो राइट में रखो, किसी भी एक साइड में आप इसे रखो. देन यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 5 माइनस 3 रूट 2 मेंशनड है. देन इस माइनस 3 रूट 2 को अगर हम राइट में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 रूट 2. ओके, देखिए 5 इज इक्वल टू, इधर a बाई बी पहले से था, a बाई बी, इसे हम ले जाएंगे तो प्लस 3 रूट 2 हो जाएगा ये. क्लियर? नाउ ये जो a बाई बी है ना, इसे हम लेफ्ट में लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस a बाई बी, ओके, इज इक्वल टू 3 रूट 2. नेक्स्ट स्टेप देखिए, 3 जो है वो रूट 2 के साथ मल्टीप्लाइड है. तो मैंने क्या बोला था आपको, इस रूट 2 को आपको या तो लेफ्ट में या तो राइट में रखना है. तो यहाँ पे ये राइट में है तो इस रूट 2 को हम राइट में ही रहने देते हैं और इसके साथ जो 3 है ना, इसे हम लेफ्ट में लेके आते हैं. क्लियर? सो दिस इंप्लाइज 5 माइनस a बाई बी हो गया डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू रूट 2. क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ यहाँ पे देखिए आप, चलिए अभी इसके लेफ्ट पोर्शन को आप ध्यान से देखो. यहां पे देखिए 5 है, 5 एक रैशनल नंबर होता है. a बाई बी इज अगेन अ रैशनल नंबर, सो रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, इट विल अगेन गिव अ रैशनल नंबर. क्लियर? नाउ इसका न्यूमरेटर जो है दैट इज अ रैशनल नंबर एंड इसके डिनोमिनेटर को देखिए दैट इज 3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. ओके, सो नाउ रैशनल नंबर डिवाइडेड बाई रैशनल नंबर, इट विल अगेन गिव अ रैशनल नंबर. ओके, सो नाउ यहां पे इसे हम लिखते हैं दैट सिंस a by b is a rational number, since a by b is a rational number, so 5 minus a by b divided by 3 is also a rational number. So 5 minus a by b divided by 3 is also a rational नंबर. ओके, क्लियर? बट यहां पे ये जो देखिए रूट 2 है ना, दिस इज अ इरैशनल नंबर, दिस वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड. ओके, बट रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर, बट रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर. ओके, देन यहां पे फिर से देखो
इस इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट को देखो, ये लेफ्ट पार्ट आपका रैशनल नंबर हो गया और इसके राइट पार्ट को देखो, ये आपका इररेशनल हो गया। तो अगेन यहाँ पे क्या मिला हमें, रैशनल नंबर इज इक्वल टू इररेशनल नंबर। ये कभी हो ही नहीं सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल राइट, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, यहाँ पे जो हम लोग को रिजल्ट मिला ना, ये √2 आपका रैशनल नंबर, ये 5 - a/b/3 ये आपका इररेशनल, ये आपका रैशनल नंबर। ओके, नाउ इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओ इसे इक्वेशन 1 हमें कंसिडर करना था, ये इक्वेशन 1। ओके, चलिए सो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट विल राइट, इसके लेफ्ट पोर्शन को देखिए, 5 - a/b/3 ये आपका रैशनल नंबर है। सो फ्रॉम 1 रैशनल नंबर इज इक्वल टू, इसके राइट पार्ट को देखिए, √2 आपका इररेशनल नंबर। क्लियर? सो यहां पे देखिए हमें क्या रिजल्ट मिला है, दैट रैशनल नंबर इज इक्वल टू इररेशनल नंबर, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा इसीलिए हुआ है बिकॉज यहां पे हमने ये कंसिडर कर लिया था दैट 5 - 3√2 इज अ रैशनल नंबर। मतलब यहां पे जो भी हम लोगों ने कंसिडर किया था ये बिल्कुल रॉन्ग है, दिस इज टोटली रॉन्ग। ओके, सो our consideration that 5 - 3√2, so our consideration that 5 - 3√2 is a rational number, is wrong. So our consideration that 5 - 3√2 is a rational number is wrong. So what does it mean? It means that 5 - 3√2 will be an irrational number. Okay, understood? So this was the solution of your question number 67. Some previous year board questions based on the irrationality of numbers. Okay, so let's start with the question number 68. Okay, let's start with the question number 68. So question number 68, and this question is from the board year 2018. Okay, and question number 68 क्या है, write whether 2√5 plus 3√20 divided by 2√5 on simplification gives an irrational number or a rational number. Okay, चलिए ये आपका क्वेश्चन है 68, 2√5 plus 3√20 divided by 2√5. ओके, हमें सिंप्लीफाई करके ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ना, हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद ये बताना है दैट क्या ये जो गिवन नंबर है ये एक इररेशनल नंबर है या एक रैशनल नंबर है। क्लियर? ओके, तो देखिए ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसके डिनोमिनेटर को आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर क्या है, 2 × √5, तो 2 क्या है, रैशनल नंबर, और √5 क्या है, एक इररेशनल नंबर। क्लियर? तो एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एक इररेशनल नंबर होता है। मतलब ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका जो डिनोमिनेटर है ना ये एक इररेशनल नंबर है। ओके, देन क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है दैट इज एन इररेशनल नंबर है ना, इसे हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? देन आप देखो इसे हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 2√5 प्लस 3√20 डिवाइडेड बाई 2√5। ओके, देन ये जो डिनोमिनेटर है दैट इज 2√5, इसे अगर हमें इसको अगर हमें रैशनल में कन्वर्ट करना है देन वी विल यूज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर। एक रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है, उस रैशनलाइजिंग फैक्टर को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं और उसे हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे 2√5 है तो यही 2√5 को आप मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में भी और इसे आप मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में भी। क्लियर? चलिए, सो नाउ
2√5 प्लस 3√20, ये आपका एक ब्रैकेट में हम लोग इसे लिख देते हैं, और यहाँ देखिए 2√5 इसके साथ मल्टीप्लाइड है। इट मीन्स ये जो 2√5 होगा इस 2√5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3√20 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? चलिए, सो 2√5 इसको 2√5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2√5 को हम लोग 3√20 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय, देखिए 2√5 इंटू 2√5 मतलब 2√5 का होल स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 इंटू 2 हो गया आपका 4 एंड √5 इंटू √5 क्या होता है 5, सो 4 इंटू 5 यहां मिला हमें, प्लस देखिए 2 इंटू 3 हुआ आपका 6। नाउ यहां पे आप ध्यान से देखो, एक प्रॉपर्टी है, देखिए यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, बट मैं बता दे रहा हूं एक बार। जैसे √a इंटू √b अगर रहे, देन इट कैन बी रिटन एज होल रूट a इंटू b। ओके, अंडरस्टूड? ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं ना। अगर आप लोग को याद होगा, आई थिंक लास्ट क्लास में जब हम लोग प्रूव कर रहे थे √3 इज अ रैशनल नंबर, √5 इज अ इरैशनल नंबर, देन वहां पे मैंने क्या बोला था आपको, दैट ये जो √5 का जो स्क्वायर होता है ना, ये आपका 5 होता है। देन ये तो मैंने आपको बता दिया था। अगेन ये चीज आपको पता होगा, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, बट चलिए मैं बता दे रहा हूँ दैट √5 का जो स्क्वायर होता है, ये 5 कैसे होता है। देखिए √5 का स्क्वायर मतलब क्या, √5 इंटू √5। ओके, ना यहाँ पे देखिए, अब इस फॉर्म को आप यहां से कंपेयर करो, √a इंटू √b अगर रहेगा हमारे पास, देन उसे हम क्या लिख सकते हैं, होल रूट a इंटू b। क्लियर? देन यहां पे आप वैसे ही करो, होल रूट 5 इंटू 5। ओके, देन 5 इंटू 5 हो गया 25, एंड 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। ओके, सो ये देखिए, ये वाला रिजल्ट मैंने आपको डायरेक्टली बोला था दैट √5 का जो स्क्वायर होता है वो 5 होता है। लेकिन ये रिजल्ट आता कैसे है, ये अभी आप लोगों ने देखा। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसे क्यों बताया आप लोगों को, बिकॉज यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज है। क्लियर? ओके, यहां पे देखिए √5 इंटू √20, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 20। क्लियर? डिवाइडेड बाय, देखिए 2 इंटू √5 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 2 का भी स्क्वायर होगा और √5 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड √5 का स्क्वायर अभी मैंने बताया √5 इंटू √5 मीन्स 5। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 5 हो गया आपका 20, प्लस 6 इंटू ये आपका होगा 5 इंटू दैट इज √100 डिवाइडेड बाई 4 5 20। ओके, चलिए उधर सॉल्व करते हैं। अभी यहां देखिए √100 है, √100 का वैल्यू क्या होता है 10। ओके, सो ये क्या होगा आपका 20 प्लस 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20। सो 20 प्लस 6 इंटू 10 इज 60 डिवाइडेड बाई 20। So 60 plus 20 is 80, 80 डिवाइड बाई 20, so 80 डिवाइड बाई 20 का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 4 होता है। तो यहां पे देखिए हम लोगों ने जब ये गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर 4 आया। एंड 4 इज व्हाट, 4 इज ऑब्वियसली एन रैशनल नंबर, ये आपका एक रैशनल नंबर है। क्लियर? सो हम लोग लिख देते हैं दैट ऑन simplifying 2√5 plus 3√20, on simplifying 2√5 plus 3√20 by 2√5, we get 4 that is a rational number. Okay, understood? So this was the solution of your question number 68. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 69। और क्वेश्चन नंबर 69 क्या गिवन है, गिवन दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर, प्रूव दैट 2 प्लस √3 इज एन इरैशनल नंबर। तो यहां पे देखिए मेंशन कर दिया है दैट इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। अगर ये चीज गिवन नहीं भी होता देन ऑल्सो हम ये मान के ही चलते दैट √3 एक इरैशनल नंबर है। ओके, अंडरस्टूड? चलिए तो हमें प्रूव क्या करना है, दैट 2 plus √3 is an irrational number. This is question number 69 and this question is from the board year 2018.
2 plus root 3. Okay, 2 plus root 3. हमें प्रूव करना है दैट दिस इज अ इरैशनल नंबर. सो अगेन कंसिडर कर लेते हैं दैट लेट 2 plus root 3 is a rational number. Let 2 plus root 3 is a rational number. So if 2 plus root 3 is a rational number, so it means that we can represent it, that is 2 plus root 3 in the form of p by q. So p by q बोलो या a by b बोलो या c by d बोलो, any variables you can take. चलिए, so 2 plus root 3 will be written as a by b, और ये जो a by b मैंने यहाँ पे लिखा है, this is actually in its simplest form. Clear? So यहाँ पे लिख देते हैं that a and b are co-prime. सिंपलेस्ट फॉर्म बोलने का मतलब क्या, दैट a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, मतलब 1 तो ऑलवेज एक कॉमन फैक्टर रहता ही है. सो इट मीन्स दैट a और b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका 1 है. क्लियर? सो 2 plus root 3 is equal to a by b. देन अगेन सेम मेथड हम लोग यूज करेंगे. यहाँ पे देखिए √3 आपका मेंशन्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस √3 को हम लोग या तो लेफ्ट में रखें या तो राइट में रखते हैं. ओके, देखिए तो इस √3 को चलिए अगर हम लोग लेफ्ट में रखें तो इस +2 को राइट में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका a by b minus 2. ओके, ना यहाँ देखिए ये जो a by b है ना, दिस a by b इज अ रैशनल नंबर. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने देखिए कंसिडर किया लेट 2 plus root 3 इज अ रैशनल नंबर, और उसी 2 plus root 3 को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया a by b के फॉर्म में, मतलब a by b एक रैशनल नंबर है एंड 2 इज ऑब्वियसली अ रैशनल नंबर. सो रैशनल माइनस रैशनल, इट विल अगेन गिव अ रैशनल नंबर. ओके, चलिए यहाँ पे लिखते हैं दैट सिंस a by b is a rational number, since a by b is a rational number, so it means a by b minus 2 is also a rational number. Okay, is also a rational number. Clear? But what has been mentioned in the question that √3 is a irrational number. ओके, अंडरस्टूड. तो इसे हम लिख देते हैं एंड इट इज गिवन दैट √3 is an irrational number, and it is given that √3 is an irrational number. ओके, अंडरस्टूड. नाउ यहाँ पे इसे हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं. नाउ इस इक्वेशन 1 में आप ध्यान से देखो, इसका जो राइट पोर्शन है ये आपका एक रैशनल नंबर है, बिकॉज a by b minus 2 भी एक रैशनल नंबर ही होगा. और इसके लेफ्ट पार्ट को देखिए √3 एक इररैशनल नंबर होता है. ओके, सो इररैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर. क्या ऐसा कभी आपने सुना है, ऐसा कभी हो सकता है पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, अंडरस्टूड. सो नाउ व्हाट वी विल राइट that so from 1 irrational number, so from 1 irrational number is equal to what? Is equal to rational number. So from 1 irrational number is equal to rational number, and ये जो आया है यहाँ पे irrational number is equal to rational number, this is not possible, which is not possible. So it means यहां पे जो हम लोगों ने कंसिडर किया था ये तो गलत हो जाएगा, बिकॉज यहां पे अगर हम लोगों ने कंसिडर किया दैट 2 plus √3 इज अ रैशनल नंबर, देन उससे हमें ये पता चलता है दैट इररैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर. तो मतलब ये तो हो नहीं सकता. इट मींस यहां पे जो हम लोगों ने कंसिडर किया था ये गलत है. ओके, अंडरस्टूड. सो व्हाट वी विल राइट, सो इट means that our consideration that 2 plus √3, so it means that our consideration that 2 plus √3 is a rational number is wrong, is wrong. 2 plus √3 is a rational number is a rational number. 2 plus √3 is a rational number 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 is a ra
is a rational number is wrong. So what we will write? So 2 plus root 3 is an irrational number. So 2 plus root 3 is an irrational number. Okay, understood? So this was the solution of your question number 69. So let's move forward towards the next question, that is question number 70. So question number 70 है आपका, show that root 3 plus root 5 का whole square is an irrational number. Okay, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन ईयर 2015. रूट थ्री प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर. ओके, हमें ये प्रूव करना है दैट दिस इज अ इरैशनल नंबर. तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे आइडेंटिटी को लगाते हैं. तो यहाँ पे किस आइडेंटिटी को हम लोग यूज करने वाले हैं? देखिए यहाँ पे that is a plus b का whole square. Okay, so we will mention this that using the identity a plus b का whole square, that is a square plus b square plus 2ab. Okay, so यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5. ओके, नाउ रूट 3 का स्क्वायर इज 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर इज 5 प्लस 2 इंटू यहाँ देखिए रूट 3 इंटू रूट 5. इट मीन्स ये हो जाएगा आपका रूट 3 इंटू 5. सो ये टोटली आपका क्या हो जाएगा? देखिए 5 प्लस 3 इज 8 प्लस 2 8 प्लस 2 रूट 15. 8 प्लस 2 रूट 15. क्लियर, अंडरस्टूड? चलिए, सो ये देखिए ये आइडेंटिटी को यूज करने के बाद ये हमें मिला. तो नाउ हमें ये शो करना था दैट दिस इज अ इरैशनल नंबर. तो इसे सॉल्व करने के बाद ये मिला. तो अभी हम क्या करेंगे? इसी को प्रूव कर देंगे दैट दिस इज एन इरैशनल नंबर. ओके, सो लेट 8 प्लस 2 रूट 5 सॉरी 15 नॉट 5. 8 प्लस 2 रूट 15. लेट 8 प्लस 2 रूट 15 is a rational number. So if it is a rational number, so it means that we can write 8 plus 2 into root 15 in the form of p by q or a by b. चलिए लिखते हैं. So this implies 8 plus 2 root 15 will be written as a by b. Okay, and यहाँ पे ये जो a by b मैंने लिखा है this is actually in its simplest form. So what we will write? That a comma b are co-prime. A comma b are co-prime. That is the highest common factor is equal to 1. मतलब a और b का जो HCF होगा वो आपका 1 होगा. Clear? Understood? चलिए आगे बढ़े. नाउ अगेन देखिए यहाँ पे रूट 15 मेंशन्ड है. तो आप लोग क्या करोगे? अगेन यहाँ पे इस रूट 15 को आप क्या करो, या तो लेफ्ट में रखो या तो आप इसे राइट में रखो. किसी भी एक साइड में आप इस रूट 15 को प्लेस करो. ओके, क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस 2 इंटू रूट 15 को इधर लेफ्ट में ही रहने देते हैं. ओके, और ये जो प्लस 8 है ना इसे हम राइट में लेके जाते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? a बाई बी माइनस 8. क्लियर? नाउ दिस इंप्लाइज, यहां पे देखिए 2 इंटू रूट 15 मेंशन्ड है. ओके, ये जो 2 है ना रूट 15 के साथ मल्टीप्लाइड है. तो इसे अगर हम राइट में लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका. सो रूट 15 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 8 डिवाइड बाई 2. ओके, अंडरस्टूड? यहां देखिए रूट 15 जो है आपका लेफ्ट साइड में आ गया और बाकी जो भी टर्म्स थे वो आपके राइट साइड में चले गए. तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं. नाउ अगेन देखिए सेम मेथड, a बाई बी एक रैशनल नंबर है और ये 8 भी एक रैशनल नंबर होता है. सो रैशनल माइनस रैशनल, इट विल अगेन गिव अ रैशनल नंबर. तो इसका न्यूमरेटर एक रैशनल नंबर हो गया
और 2 दैट इज द डिनोमिनेटर, ये भी एक रैशनल नंबर ही होता है. सो अगेन रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, इट विल अगेन गिव अ रैशनल नंबर. ओके, सो इस फर्स्ट इक्वेशन के राइट पार्ट को अगर आप देखोगे, सो दिस इज अ रैशनल नंबर. क्लियर? सो मेंशन करते हैं दैट सिंस a by b is a rational number, since a by b is a rational number, so a by b minus 8 by 2, a by b minus 8 whole divided by 2 is also a rational number. ओके, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. ये तो आपका राइट पार्ट जो था इस इक्वेशन का राइट साइड, ये आपका रैशनल हो गया. बट इसके लेफ्ट पार्ट को आप देखो, रूट 15 जो है, रूट 15 एक इररैशनल नंबर होता है ना. अगेन आप लोग यहाँ पे सोच रहे होगे दैट आपने तो ये प्रूव करके हमें बताया ही नहीं दैट रूट 15 जो होता है दैट इज एन इररैशनल नंबर. देन यहाँ पे एक पॉइंट आप समझो. चलिए, रूट 15 का अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन याद होगा, देन उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, दैट इज ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. देन वहां से हम बोल सकते हैं दैट रूट 15 इज एन इररैशनल नंबर. देन ओके, अगर ये पॉइंट चलिए जाने दीजिए, ये भी पॉइंट आपको नहीं पता है, देन एक और पॉइंट सुनिए. जैसे ये नंबर्स होते हैं ना, 1 का स्क्वायर होता है कितना 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25. सो ये जो 1 है, ये जो 4 है, ये जो 9 है, ये 16 है, ये 25 है. दीज आर व्हाट? दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. ओके, ये आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा. दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. ओके, देन आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे, देखिए जैसे यहाँ पे 1 है तो रूट 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है. अगेन यहाँ पे ये 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो रूट 4 अगर आप निकालोगे तो आपको 2 मिलेगा. नाउ रूट 9 अगर आप निकालोगे तो ये आपको 3 मिलेगा. रूट 16 निकालोगे तो ये आपको 4 मिलेगा, और यहाँ आप रूट अगर 25 निकालोगे तो ये आपको 5 मिलेगा. सो अगर आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो तो आपको ऑलवेज एक देखिए नेचुरल नंबर मिलता है. ओके, नेचुरल नंबर बोलो या आप इसे होल नंबर बोलो. ओके, रैशनल नंबर भी आप इसे बोल सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा दैट किसी भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, देन हमें ऑलवेज क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर, एक नेचुरल नंबर या एक होल नंबर. ओके, क्लियर? बट यहां पे देखिए इन सारे नंबर्स के अलावा जो भी नंबर्स है, जैसे देखिए 1 और 4 के बीच में कौन से नंबर्स आते हैं 2, 3, 4 और 9 के बीच में कौन से नंबर्स आते हैं, कौन से नंबर्स मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल नंबर्स. ओके, नेचुरल नंबर्स बोलो, होल नंबर्स बोलो. ओके, 4 और 9 के बीच में देखिए 5, 6, 7, 8. 9 और 16 के बीच में देखिए 9 और 16 के बीच में नेचुरल नंबर्स कौन से हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15. क्लियर? और देखिए 16 और 25 के बीच में बहुत सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे आपके 17, 18, 19. सो देखिए ये सारे जो नंबर्स है ना 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सारे जो नंबर्स मैंने यहां पे लिखे, दीज ऑल आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. ओके, ये सारे आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं. तो आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे ना, देन उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आता है. ओके, अंडरस्टूड? दैट्स वाई यहां पे जो मैंने बोला दैट रूट 5 जो है दैट इज एन इररैशनल नंबर, बिकॉज यहां पे 15 जो है ये आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो अगर आप 15 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आएगा. तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग किसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है? ऑब्वियसली ऑफ एन इररैशनल नंबर. इसीलिए मैंने यहां आपको बोला दैट ये जो रूट 15 है ना ये एक इररैशनल नंबर है. ओके, अंडरस्टूड? चलिए देखिए हम लोग क्या लिखेंगे. यहां पे हमने लिखा दैट सिंस a by b is a rational number, so it means a by b minus 8 by 2 is also a rational number. but यहां पे मैं क्या लिखना होगा, but root 15 is an irrational number, but root 15 is an irrational number. So from 1 what we will say, ये जो इक्वेशन 1 हमने कंसिडर किया इससे हम क्या बता सकते हैं दैट यहां पे देखिए क्या मिला, इररेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर. ये मिला हमें इररेशनल
number is equal to rational number. Irrational number equal to rational number. So अभी हम क्या लिखेंगे, क्या ये जो गिवन है यहाँ पे हम लोग का जो भी आया, क्या ऐसा हो सकता है? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज यहाँ पे हमने ये कंसिडर कर लिया दैट 8 + 2√15 इज अ रैशनल नंबर. सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? सो आवर consideration that 8 + 2√15. So our consideration that 8 + 2√15 is a rational number. Is a rational number is wrong. Is a rational number is wrong. So it means that 8 + 2√15 is an irrational number. Okay, understood? चलिए, सो यहाँ पे एक्चुअली हमें ये प्रूव करना था दैट √3 + √5 का होल स्क्वायर इज एन इररेशनल नंबर. सो यहाँ पे जब हमने इसे सॉल्व किया तो सॉल्व करके ये आया. तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया दैट 8 + 2√15 इज एन इररेशनल नंबर, देन इसका ये मतलब भी तो होता है दैट √3 + √5 का होल स्क्वायर इज ऑल्सो एन इररेशनल नंबर, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज आपके सेम है. ओके, सो नाउ वी कैन से that √3 + √5 का होल स्क्वायर is also an irrational number. Is also an irrational number. Clear? Understood? So this was the solution of your question number 70. With the question number 71, and this question is from the board examination year 2011. Okay, and this question is from the board examination year 2011. Question number 71. क्या बुक करना है हमें यहाँ पे? प्रूव दैट 15 + 17 × √3 is an irrational number. 15 + 17 × √3 is an irrational number. So again we will use the contradiction method. Simple. So what we will write that let 15 + 17 √3 let 15 + 17 √3 is a rational number. Clear? So it means that I can write 15 + 17 × √3 in the form of a/b. 15 + 17 √3 is equal to a/b. और यहाँ पे जो मैंने a/b लिखा है, this is actually in its simplest form. We will write a/b are co-prime. मतलब a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा. मतलब 1 तो ऑलवेज एज अ कॉमन फैक्टर प्रेजेंट रहेगा ही. मतलब HCF is equal to 1. मतलब a and b का जो HCF है that is equal to 1. ओके, ना यहाँ पे आप √3 को देखिए तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इस √3 को किसी भी एक साइड में प्लेस करेंगे, या तो लेफ्ट साइड में नहीं तो राइट साइड में. क्लियर? सो यहाँ पे आप देखो 17 × √3 मेंशन्ड है आपका. 15 ये जो प्रेजेंट है ना, इसे हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका a/b - 15. ओके, a/b - 15. नाउ ये 17 आपका √3 के साथ मल्टीप्लाइड है, तो इसे हम अगर राइट में लेके जाएंगे तो आपका डिवाइड हो जाएगा. सो √3 is equal to a/b - 15 डिवाइडेड बाई 17. इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं. नाउ यहाँ पे आप देखो a/b इज अ रैशनल नंबर, 15 is again a rational number, so rational minus rational is again a rational number. So मतलब ये जो न्यूमरेटर है this is a rational number, और इसके डिनोमिनेटर को देखिए that is 17, it is also a rational number. So again rational divided by rational, it will again give a rational number. मतलब ये जो right portion है ना, right side of this equation 1, this is a rational number. So what we will write that since a by b is a rational number,
So a by b, so a by b minus 15 by 17 is also a rational number, is also a rational number. बट यहां पे इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड को देखिए, ये जो √3 है ना, दिस √3 इज एन इरेशनल नंबर. ये तो हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर लिया है. सो लिखते हैं हम लोग, बट √3 इज एन irrational number. But √3 is an irrational number. So what we will write? So from equation 1, what we will write, देखिए इसके लेफ्ट साइड को देखिए, दिस इज एन irrational number, और इसके राइट साइड को देखिए, दिस इज अ rational number. So from equation 1 we will write that irrational number is equal to rational number. Okay. एंड ये जो मैंने अभी लिखा है, दिस इज नॉट पॉसिबल. कभी आपने सुना है दैट इरेशनल नंबर इज इक्वल टू अ रैशनल नंबर? सो व्हाट वी विल राइट, दैट विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो ऐसा क्यों आया इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर? यहां पे क्यों हमें मिला? बिकॉज यहां पे हमने ये कंसिडर कर लिया था दैट 15 प्लस 17 इंटू √3 इज अ रैशनल नंबर. मतलब ये जो भी हम लोगों ने कंसिडर किया ये गलत है. ओके, सो व्हाट वी विल राइट दैट सो आवर कंसिडरेशन दैट 15 plus 17 √3, so our consideration that 15 plus 17 √3 is a rational number, is wrong. So what we will write? So 15 plus 17 √3 is an irrational number, Clear? Understood? So this was the solution of question number 71. So let's move towards the next question, that is question number 72. And this question is from the board examination year 2014. So question क्या है? Show that the reciprocal of 3 plus 2 into √2 is an irrational number. Okay? नंबर क्या है? 3 plus 2 √2. हमें ये प्रूव करना है, ये जो नंबर गिवन है ना, इस नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी एन इरेशनल नंबर. ओके, सो रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं. रेसिप्रोकल ऑफ 3 plus 2 √2 बहुत सिंपल है. रेसिप्रोकल निकाला 1/3 plus 2 √2. देखिए रेसिप्रोकल निकाला बहुत ही सिंपल है. यहां जो नंबर था ना 3 plus 2 into √2, ये आपका न्यूमरेटर में प्रेजेंट था और इसके डिनोमिनेटर में आपका 1 था. तो सिंपली मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में था उसे मैंने न्यूमरेटर में भेज दिया और जो न्यूमरेटर में था उसे मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया. सिंपल ना. तो मतलब हमें ये प्रूव करना है दैट 1/3 plus 2 √2 दिस इज एन इरेशनल नंबर. ओके, तो ना अभी इस नंबर को देखिए 1/3 plus 2 √2. ना अभी आप क्या करो, ये जो नंबर है ना इसके डिनोमिनेटर को देखो, इसके डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो. 2 into √2, 2 इज अ रैशनल नंबर एंड √2 इज एन इरेशनल नंबर. सो रैशनल इंटू इरेशनल, ये दिस विल गिव एन इरेशनल नंबर. ओके, मतलब ये जो 2 √2 है ये आपका इरेशनल नंबर हुआ और ये 3 क्या है आपका, 3 इज अ रैशनल नंबर. सो अगेन रैशनल प्लस इरेशनल, इट विल अगेन गिव अ इरेशनल नंबर. सो इसका जो डिनोमिनेटर है ना दिस इज अ इरेशनल नंबर. देन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग रैशनलाइजेशन परफॉर्म करते हैं. रैशनलाइजेशन परफॉर्म करने का मतलब क्या, दैट इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज एन इरेशनल नंबर, हम लोग क्या करेंगे उसको एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर विथ अ रैशनलाइजिंग फैक्टर.
ओके एंड यहाँ पे आप सिंपल क्या करो, ये जो प्लस का साइन है ना, आप अपने रैशनलाइजेशन फैक्टर में क्या करोगे, इस प्लस के साइन को चेंज करके माइनस कर दो। ओके एंड दिस नंबर्स विल रिमेन द सेम, मतलब 3 माइनस 2√2 से आप क्या करो, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करो एंड डिनोमिनेटर को भी 3 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई करो। नाउ अभी आप नेक्स्ट स्टेप में देखोगे दैट यहाँ पे साइन चेंज करने से की वजह से क्या हुआ। न्यूमरेटर को देखिए 1 इंटू 3 माइनस 2√2 मतलब 3 माइनस 2√2, ये तो हो गया क्लियर ना। इसके डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिखेगा आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कौन सा आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका वैल्यू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन a क्या है आपका 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है आपका 2√2 का स्क्वायर। क्लियर, अंडरस्टूड। यहां मेंशन कर देते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर, चलिए सो न्यूमरेटर इसका 3 माइनस 2√2 ही रहेगा। इसका डिनोमिनेटर देखिए 3 स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2 मतलब 4 इंटू 2 दैट इज 8। ओके 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो ये हो गया आपका 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8 आपका 1, मतलब ये जो नंबर है ना 3 माइनस 2√2 आया। अब हम ये प्रूव कर देंगे दैट 3 माइनस 2√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पे देखिए रैशनलाइजेशन जब हम लोगों ने परफॉर्म किया देन यहाँ पे हमने साइन क्यों चेंज किया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक्चुअली डिनोमिनेटर में ना √2 प्रेजेंट था, तो √2 को रिमूव करने का एक ही तरीका है, अगर वहां पे हम लोग √2 का अगर स्क्वायर का फॉर्म ले आए, √2 का स्क्वायर का फॉर्म में लाने से क्या होगा, बिकॉज √2 इंटू √2 का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर का फॉर्म लाना था, तो स्क्वायर का फॉर्म में लाने के लिए हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना था। ओके तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये a प्लस बी का फॉर्म आपको दिख रहा था, तो यहाँ पे अगर आप a माइनस बी, ओके यहाँ पे आपको a प्लस बी का तो फॉर्म दिखा, यहाँ पे अगर आप a माइनस बी का फॉर्म ले आते देन ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन को चेंज किया, तो साइन को चेंज करने से क्या हुआ, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म हुआ, और फिर जब हमने यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज किया दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए √2 का भी स्क्वायर हुआ। ओके तो √2 का स्क्वायर होने के वजह से यहाँ से √2 जो है वो रिमूव हो गया, बिकॉज √2 इंटू √2 का वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 और यहाँ से 2, तो 4 इंटू 2 8, तो देखिए डिनोमिनेटर जो था वो एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये आपका रैशनलाइजेशन होता है, ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्लियर, तो अभी देखिए 3 प्लस √2 का ये देखिए रेसिप्रोकल ये हो गया 3 माइनस 2√2, तो अभी हमें ये प्रूव कर देंगे दैट दिस इज अ इररेशनल नंबर। ओके चलिए, तो अगेन वी विल यूज द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सो व्हाट विल राइट दैट लेट 3 माइनस 2√2 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर, सो इट मीन्स दैट 3 minus 2√2 will be written in the form of a by b or you can say p by q, और यहां पे जो मैंने a by b लिखा है ना, this a by b is actually in its simplest form. So what we will write that a comma b are co-prime लिखने का मतलब क्या हुआ, that a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, because 1 will always remain a common factor. That means the HCF is equal to, मतलब a comma b का जो HCF है वो 1 के इक्वल है। क्लियर, चलिए अगेन यहाँ पे ये जो √2 है ना, इस √2 को हम लोग क्या करेंगे, इसे हम किसी भी एक साइड में प्लेस करेंगे, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। तो चलिए जो माइनस 2√2 है इसे हम राइट साइड में लेके चले जाते हैं, तो लेफ्ट में बचेगा आपका 3 इज इक्वल टू a प्लस 2√2। क्लियर, नाउ अभी ये जो a बाई बी राइट में इसे हम लेफ्ट में लेके आते हैं, सो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस a बाई बी इज इक्वल टू 2√2। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे देखो आप 2 जो है √2 के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये जो 2 है इसे हम लेफ्ट में लेके आते हैं, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3 माइनस a बाई बी बाई 2
इज इक्वल टू रूट 2। क्लियर? नाउ अगेन देखिए सेम मेथड, 3 एक रैशनल नंबर होता है, a बाई बी ये तो गिवन ही है, यहाँ पे हम लोगों ने जो कंसिडर किया दैट 3 माइनस 2 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, सो इसे हम लोगों ने लिखा a बाई बी के फॉर्म में, मतलब ये जो a बाई बी है दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, सो ये 3 भी रैशनल नंबर, a बाई बी भी रैशनल नंबर, सो रैशनल माइनस रैशनल इट विल अगेन गिव अ रैशनल नंबर, सो न्यूमरेटर एक रैशनल नंबर हुआ। क्लियर? और इसके डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर क्या है? 2 है, 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, सो अगेन रैशनल डिवाइडेड बाई रैशनल इट विल अगेन गिव अ रैशनल नंबर। सो इसे हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन 1 के आप लोग लेफ्ट साइड को देखो, दिस लेफ्ट साइड इज व्हाट? दिस लेफ्ट साइड इज अ रैशनल नंबर, सो व्हाट वी विल राइट? सो ओके लेट मी राइट एक स्टेप, नॉट सो, यहां से सिंस से स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट सिंस a बाई बी, सिंस a बाई बी इज अ रैशनल नंबर, सिंस a बाई बी इज अ रैशनल नंबर, सो 3 माइनस, सो 3 माइनस a बाई बी बाई 2 इज also a rational number, is also a rational number, and यहां पे देखिए रूट 2 मेंशन्ड है, एंड रूट 2 क्या होता है? रूट 2 ऑब्वियसली एक इरैशनल नंबर होता है, एंड वी नो दैट रूट 2 is an irrational number, and we know that root 2 is an irrational number. So from equation 1, what we will write? Rational number is equal to irrational number. Rational number is equal to irrational number. Rational number is equal to irrational number. और क्या आपने कभी ऐसा देखा है दैट एक रैशनल नंबर एक इरैशनल नंबर के बराबर हो जाए? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो यू हैव टू राइट इट हियर दैट विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, क्या नॉट पॉसिबल? रैशनल नंबर इज इक्वल टू इरैशनल नंबर, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो आवर कंसिडरेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ दैट हम लोगों ने जो कंसिडर किया था दैट 3 माइनस 2 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंशन हियर, सो आवर कंसिडरेशन दैट 3 माइनस 2 रूट 2 is a, so our consideration that 3 minus 2 root 2 is a rational number, is wrong. So what we will write? So 3 minus 2 root 2 is a irrational number, or you can write is an irrational number. Clear? Is an irrational number. So यहां पे हम लोगों ने प्रूव कर दिया। So यहां पे एक स्टेटमेंट आप लोग और मेंशन कर दो, so the reciprocal of 3 plus 2 root 2 is an irrational number, hence proved. Okay, इसे हम लोग मेंशन कर देते हैं। So the reciprocal of 3 plus 2 root 2 is an irrational number. So the reciprocal of 3 plus 2 root 2 is an irrational number. Okay, understood? ये आपका सॉल्यूशन था ऑफ क्वेश्चन नंबर 72. So let's solve the next question of today's class, that is question number 73. Question number 73 is from the board examination year 2011. Question क्या है? Prove that 2 into root 3 divided by 5 is an irrational number. ये आपका क्वेश्चन नंबर 73 है। 2 into root 3 divided by 5. Again we will use the contradiction method. So we will write that let 2 into root 3 divided by 5 is a rational
number, is a rational number. So if this 2 into root 3 divided by 5 is a rational number, so it means it can be written in the form of p by q, or we will write it in the form of a by b. एक ही बात है. Okay, we have to just select two variables. So a by b जो मैंने यहाँ पे लिखा है, this is actually in its simplest form. सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलने का मतलब क्या हुआ, दैट ये जो a बाई बी है ना, इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा. ओके, a एंड b आर को प्राइम. को प्राइम का मतलब वही होता है दैट a एंड b आर नॉट हैविंग अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1. इट मीन्स दैट देयर HCF इज इक्वल टू 1. ओके, चलिए नाउ अगेन फिर हमें वही मेथड यूज करना होगा. ये जो रूट 3 है ना, इस रूट 3 को आप किसी भी एक साइड में प्लेस कर दो, या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में. देन यहां पे आप देखो 2 इंटू रूट 3. 5 जो था डिवाइड फॉर्म में था, इस 5 को हम राइट में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू ए बाई बी. नाउ यहां देखिए 2 जो है वो रूट 3 के साथ मल्टीप्लाइड था, तो इस 2 को अगर हम लोग राइट में लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा. सो इट विल बी रिटन एज, देखिए रूट 3, रूट लेफ्ट साइड में आपका सिर्फ रूट 3 बचेगा, ये 2 जो है वो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. तो देखिए 5 यहाँ प्रेजेंट है, सो मैं इसे 5 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ. यस, आप बिल्कुल लिख सकते हो, इंटू ए बाई बी, इंटू ए बाई बी. क्लियर. इसे अगेन हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज देखिए जो तो रूट 3 है ना, ये लेफ्ट साइड में आपका पहुंच चुका है. दिस इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन. क्लियर. ना अभी देखिए यहाँ पे a बाई बी एक रैशनल नंबर है. यहाँ पे देखिए हमने कंसिडर किया दैट 2 इंटू रूट 3 बाई 5 एक रैशनल नंबर है. सो इट मीन्स इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी. मतलब ये अगर रैशनल है तो a बाई बी भी एक रैशनल नंबर होगा. सो a बाई बी इज अ रैशनल नंबर. 5 by 2 is also a rational number. So rational into rational, it will again give a rational number. So equation 1 का जो right side है ना, this is what? This is a rational number. Clear? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं that since a by b is a rational number, since a by b is a rational number, so what we will write? So 5 by 2 into a by b is also a rational number. Okay, is also a rational number. मतलब ये जो इक्वेशन 1 है, इसका जो राइट साइड है, ये एक रैशनल नंबर है. बट ये जो रूट 3 होता है ना, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर. सो व्हाट विल राइट दैट, बट रूट 3 इज एन irrational number. So root 3 is an irrational number. So now अभी हम क्या लिखेंगे? So from equation 1. So from equation 1. इक्वेशन 1 में देखिए रूट 3 एक irrational नंबर और इसका जो राइट पार्ट था ये एक रैशनल नंबर था. So from 1 irrational number is equal to rational number. irrational number is equal to rational number. तो क्या ऐसा कहीं आप लोगों ने देखा है that irrational number का जो वैल्यू है वो रैशनल के इक्वल हो जाए? No, this is not possible. Clear? Understood? So we will write that which is not possible. which is not possible. तो ऐसा यहाँ पे हमें क्यों मिला है? बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने ये कंसिडर कर लिया था दैट 2 इंटू रूट 3 बाई 5 एक रैशनल नंबर है. तो ये गलत क्यों आया? बिकॉज ये हम लोगों ने कंसिडर किया था. इट मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो इसका ये मतलब हुआ जो हम लोगों ने ये कंसिडर किया था ये गलत है. क्लियर? सो वी विल राइट, सो आवर कंसिडरेशन that 2 root 3 by 5 is a rational number. So our consideration that 2 into root 3 by 5 is a rational number is wrong. So what we will write? So it means that 2 root
3 मतलब 2 into root 3 by 5 is an irrational number, is an irrational number. Okay, understood? So this was the solution of your question number 73.